क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में है, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। આજે શુક્રવાર અને આવતીકાલે શનિવાર, બે દિવસના વિશેષ સ્વાધ્યાયના ક્રમમાં બાલ બ્રહ્મચારી રવિનભાઈ પંડિતજી સાહેબ, એમની રચના છે જીન માર્ગ. જૈનેન્દ્ર ભગવંતોનો જે સનાતન માર્ગ છે, કેવો માર્ગ છે, એ માર્ગની ઓથે આપણને શું મળ્યું છે, એનો કેટલી હદે આપણે અવસરનો લાભ લેવો જોઈએ, ધર્મનું સ્વરૂપ, ધર્મનો મહિમા. ગુરુદેવ શ્રીના સવારના સ્વાધ્યાયની ભાષામાં કહીએ, એક વાક્ય બોલ્યા હતા ગુરુદેવ શ્રી, આ તો જૈનેન્દ્ર ભગવંતોનો વારસો છે. એટલે આ શાસ્ત્ર એટલે તો જૈનેન્દ્ર ભગવંતો તીર્થંકરોનો, સર્વજ્ઞ ભગવંતોનો વારસો છે. ત્યાં તો પરમાત્મા પ્રકાશના સંદર્ભમાં વાત કરી, પણ આપણને એક શબ્દ પણ સાંભળવા મળે છે જનાગમનો, તો એ ખરેખર આપણા માટે તો તીર્થંકર ભગવંતોનો જ વારસો છે. એટલી હદે એટલો મહિમા લાવીને આપણે સાંભળવો જોઈએ અને આનંદ કરવો જોઈએ. હું એક બહુ આનંદની લાગણી આપ સૌ સાથે શેર કરવા માંગુ છું. થોડુંક સાંભળીને રોમાંચ થશે ને આનંદ થશે. ઘણા મહિનાઓથી જો કે આ રોગ મહામારીનો કાળ જ્યારે આવ્યો ત્યારથી જ મનમાં એક બહુ વિચાર ચાલતા હતા. 6 આવશ્યક અંગે સ્વાધ્યાય લેવા માટે મન બહુ થનગનતું હતું. તો આજે આખા દિવસમાં લગભગ 4 કલાક મેરેથોન, 4 કલાકમાં પદ્મનંદી પંચવિંશતિકામાં 6થો અધ્યાય છે ઉપાસક આચારાંગ, એટલે ઉપાસક સંસ્કાર, જેનું નામ છે શ્રાવકાચાર. એમાં કુલ 62 શ્લોકો છે, 62. 6 આવશ્યકો: દેવ પૂજા, ગુરુપાસ્તી, સંયમસ્તતા, સ્વાધ્યાય સંયમસ્તતા, દાનમ ચેતી ગ્રહસ્થાનામ ષટ્કર્માણી દિને દિને. તો મન ચોટી પડ્યું
અને સમગ્ર 62 શ્લોકોનો બહુ ઝડપથી વાંચન અને સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો. મને એમ થયું કે અપૂર્વ અવસરનો સ્વાધ્યાય પૂરો થશે. સવારના સ્વાધ્યાયમાં આપણે પદ્મનંદી પંચવિંશતિકાનો ઉપાસક સંસ્કાર શ્રાવકાચાર જે છે તે અધિકારનો સ્વાધ્યાય આપણે લઈશું. એમાં મારે આ વાત એટલી સંવેદના સાથે કરવાનું મન માટે થાય છે. એમાં 12 ભાવનાઓ પણ છે, 12 છંદ છે, 12 ભાવનાઓ અંગે. એટલે એક ભાવના સંબંધી એક છંદ પણ એટલો અદ્ભુત છે, એટલો અપૂર્વ છે. એમાં 12 ભાવનાઓની પ્રેરણા એટલો અદ્ભુત. એમાં મારે તો આમ લોક ભાવનાની વાત તો વાંચીને આમ હૃદય ગદગદ થઈ ઉઠ્યું. લોક ભાવના 6 આવશ્યકો અંગેના શ્લોકો એકને સમજાવ્યા છે. દેવ પૂજા, ગુરુ ઉપાસથી એક માટે 2-3 શ્લોકો આપ્યા છે. સંયમ અંગે 7-8 શ્લોકો આપ્યા છે. તપ અંગે 2-3 શ્લોકો આપ્યા છે. દરેક આવશ્યકનો ઘણો મહિમા કર્યો છે. એટલે એ સ્વતંત્ર એક શાસ્ત્રની જેમ જ છે, એક અધિકાર છે પણ એક શાસ્ત્રની જેમ છે. અને એમાં શ્રાવકાચાર છે. તો આપણા જીવનમાં દેવ પૂજા, ગુરુની ઉપાસના, સ્વાધ્યાય એક નાની બાબતોનો કેટલો મહિમા હોવો જોઈએ એ આપણને ખ્યાલ આવે. હમણાં બપોરે તો નહીં પણ સાંજે 6:30 પોણા 7 થી 8:30 સુધી અલીગઢમાં બાલ બ્રહ્મચારી કલ્પનાબેનજી મૂલાચાર ઉપર સ્વાધ્યાય લે છે. મૂલાચાર, એ મૂલાચારના સ્વાધ્યાયમાં સમ્યક જ્ઞાનનો, જ્ઞાનાચારનો જ અધિકાર ચાલે છે. તો જ્ઞાનાચારમાં શબ્દાચાર, વિનયાચાર, વ્યંજનાચાર, કાલાચાર કેવી રીતે આપણે કરવો જોઈએ, આગમની વ્યાખ્યા, જ્ઞાનની વ્યાખ્યા બહુ અદ્ભુત, માણવા જેવો અને સાંભળવા જેવા સ્વાધ્યાય હોય છે. 6:30 થી 8:30 હોય છે, લાઈવ હોય છે. ઘણી વખત કલાક એક હું સાંભળું, 1.5 કલાક સાંભળું, જ્યારે જેવી અનુકૂળતા હોય તો આગળ પાછળ પછી પણ સાંભળું. એ એટલો પ્રકરણ આમ હૃદયને સ્પર્શે. આત્મા જેના વડે નિર્મળ થાય, મન જેના વડે શાંત થાય, કશાયો જેના વડે નીકળી જાય, જગતના હિત કરવાના ભાવ થાય, આગમમાં એને જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે. હમણાં 3-4 દિવસ પહેલા મેં એક સ્લાઇડની પણ વાત આપ સૌને કરી હતી. કહેવાનો અર્થ, આગમનો અભ્યાસ જેટલું થાય એટલું ઓછું છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા. આયુષ તે તો જળના તરંગ. અત્યારે આ 2021માં કેટલો પ્રાસંગિક છે આ છંદ. વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ આયુષ તે તો જળના તરંગ. પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ. હવે ત્યાં શું રાચીએ બોલવાની જરૂર નથી.
શું રાચીએ અહીં ક્ષણનો પ્રસંગ. કંઈક ફેર સમજાણો? ત્યાં શું રાચીએ એવું ક્યાં ગાવાની જરૂર છે? અહીં આ જગતમાં હવે શું રાચીએ? હા, પળવારનો ભરોસો નથી. જીવિત અસુની જલ બુદ બુદ સમ. સુમેર કાકા, સમજાવવાની જરૂર છે? આ કાવ્યનો અર્થ કરવાની જરૂર છે? હા, બંબઈમાં તો તમે એનો સાક્ષાત સ્વરૂપ જુઓ છો ને. હા, જીવિત અસુની જલ બુદ બુદ સમ, વિષય રાજ ધન રાશિ, સ્થિર નચ જીવાય સે માની કારણ સંસારાસી. હા, જળના પરપોટા જેવા છે. જીવન જળના પરપોટા જેવું છે, પરપોટા જેવું. હા વકીલ સાહેબ, પરપોટો પરપોટો દેખાય કેટલો સુવાળો, હજી નજર નાખી ન નાખી ત્યાં તો ફૂટી જાય. હા, पर खोल के पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी. ये हम आप लोगों को जिन मार्ग समझाता है, संसार की असारता को समझाता है, पर्याय की पामरता को समझाता है, स्वभाव के सामर्थ्य को समझाता है, संयोगों की असारता को समझाता है, सगे संबंधी परिवारजनों की कृत्रिमता को समझाता है. ये जिन मार्ग की महिमा है. इसलिए शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हम आप लोगों ने ये जो विषय लिया है, तत्व की महिमा के संदर्भ में थोड़ी सी मैंने पद्मनंदी पंचविंशति का उपासक संस्कार अधिकार की बात की है. 6वां अध्याय है, 62 श्लोक है. लेकिन मुझे वो 62 श्लोक ऐसे 2 महीने तक नहीं लेने, केवल और केवल 2 से 3 सप्ताह में सुपर फास्ट गति से केवल उसका केवल एक अवग्रह और आप लोगों के चित्त में एक ईहा पैदा हो जाए, विशेष जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, तो मूल विषय को केवल मैं छूते हुए स्पर्श करना चाहता हूं. मैं 3, 3.5, 4 घंटे में वो पूरा का पूरा, एक बीच में रिसेस लिया था एक 10 मिनट का, फिर बाद में 3.5 घंटे में पूरे के पूरे 62 श्लोक पूरे हो गए. एक एक श्लोक की बारीकाई मैंने देखी, इतना आनंद आया. एक मैं उदाहरण केवल आपको लोक भावना का बताना चाहता हूँ. लोक भावना में ऐसा 4 गति और 84 लाख योनियों के बारे में, 3 लोक के बारे में, 3 लोक के जीवों के बारे में, उनके दुखों के बारे में सोचना, और फिर सुख स्वभावीय आत्मा के प्रति हमें अपनी भावना को दृढ़ कर, ये लोक भावना है. मतलब लोक भावना भाते भाते लौकिक दृष्टि हट जाए और अलौकिक आत्मा की भावना हो जाए, ये मूल उसका मर्म है लोक भावना. 6 द्रव्य में लोक के कोई करता नहीं, कहने का मतलब मेरे सुख दुख का कोई करता नहीं, किसी के सुख दुख का कोई करता नहीं है. ऐसा स्वतंत्रता का मंत्र, उस स्वतंत्रता के मंत्र की मिश्री अपने चित्त में घुलने लगेगी तो समझ लेना कि हमने लोक भावना भाई, ये उसका हार्द है लोक भावना.
कितना सुंदर लिखा है, देखो। लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र सापाय स्थितिरध्रुवः दुःखकारीति कर्तव्या मोक्षे एव मति सताम। कितना सुंदर लिखा है। यह समस्त लोक विनाशिक और अनित्य है। सापाय स्थिति अध्रुव मतलब विनाशिक है, अनित्य है और नाना प्रकार के दुखों को करने वाला है। दुखकारी, दुखों को करने वाला है। अध्रुव मतलब विनाशिक है। ऐसा विचार करके क्या करना चाहिए? दुखकारीति कर्तव्या मोक्षे एव मति सताम। उत्तम पुरुषों को तो, सज्जन पुरुषों को तो, संवेदनशील भेद विज्ञानी आत्मार्थी जीवों को, तत्वज्ञानियों को तो, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करने वालों को तो, सत्ता स्वरूप को पढ़ने वालों को तो, सत्ता स्वरूप का हार्द हृदय में बिठाने वालों को तो क्या करना चाहिए? सदा मोक्षेव मति सताम। मोक्ष की ओर ही अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। बस हो गई लोक भावना। कितना, 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ, मतलब जगत के दुखों को देखकर हमें अपने सुख की तरफ मुड़ना चाहिए। क्या कहा? जैसे मैं एक 2 उदाहरण देता हूं, एक प्रचलित करंट अफेयर्स के बारे में, दूसरा एक बहुत प्रचलित। पड़ोसी के वहां यदि चोरी हो जाती है तो अपना ताला हम आप लोग जांच लेते हैं कि नहीं, चाबी बराबर है कि नहीं, ताला बदल जाता है कि नहीं, पुराने ताले की जगह नया ताला आ जाता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि पड़ोसी के वहां चोरी हुई, कहीं हमारे यहाँ न हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के बारे में, अपने पड़ोसी के वहां कोई पॉजिटिव केस आ गए तो हम क्या करते हैं? चलो और सावधानी रखो, अब घर से बाहर निकलो ही मत। अपनी सावधानी हम बढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक वैसे ही जगत को दुखी देखो और अपने सुख की तरफ लौट आओ। 4 गति 84 लाख योनियों की भ्रमणा को देखो और अपने स्वरूप की तरफ आओ। ये लोक भावना। इस प्रकार से इसमें बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है। मेरा कहने का मतलब ये जिन मार्ग है, 12 भावनाओं का विषय, हाँ, 6 आवश्यकों का विषय, श्रावकाचार का विषय, श्रमणाचार का विषय, बहुत अद्भुत है। लेंगे जब लाभ लेंगे, जब अपन विशेष लाभ लेंगे। जिन मार्ग मूल काव्य, जिसकी चर्चा हम आप लोगों को करनी है। 4-5 अंतराएं हम आप लोगों ने देखे हैं, बल्कि 6 अंतराएं पूरी हुई है। 1 मिनट में मैं आपको 6 अंतराओं की विषय वस्तु बताता हूँ। पहले अंतरा में माता पिता और गुरु से संबंधित रूप को प्रस्तुत किया, देव, शास्त्र और गुरु। तीसरे में देव, शास्त्र, गुरु आदि का मिलना मानो समकित की सीढ़ी मिली, समकित के सोपान मिले। ऐसे महाभाग्यमय अवसर को हमें सही सही पहचान कर अवसर का लाभ लेना चाहिए और जगत मात्र के प्रति मोह माया ममता को छोड़ना चाहिए। तीसरे में तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना, यही पहला पुरुषार्थ है, क्योंकि तत्व निर्णय पूर्वक तत्व विचार करने वाला जीव ही परमार्थ को समझ सकता है, परमार्थ को छू सकता है। इसलिए भेद ज्ञान करो, स्वानुभव लो और अनंत सुख को पाओ। ये तीसरे छंद में कहा। चौथा, करोड़ों उपाय करके मन में संयम की भावना लाओ, विषय कषाय आदिकों का त्याग करो और ज्ञानाभ्यास निरंतर करो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। बराबर। उसके बाद 5वां छंद, 5वें छंदों में बहुत सुंदर बात कही। रत्नत्रय में अक्षय संपत्ति जिसके पास है, जो प्रकट हुई होवे, फिर शुभाशुभ आदि कर्मोदयों में
उसकी परिणति विकारी नहीं बनती है, विचलित नहीं होती है, वो निर्विकार परिणति रहती है। जैसे वो योद्धा होता है ना, योद्धा, तो वो सील्ड यहाँ जो बांधते हैं ना, बख्तर बंद होते हैं, बख्तर बंद, उसको बोलते हैं कवच। तो कवच जो होता है सील्ड कहते हैं उसको। जैसे कोविशील्ड, ये तो नाम सुना होगा ना सभी ने। कोविशील्ड को कोविशील्ड क्यों कहा जाता है, कुछ सोचा आप लोगों ने? ये भी पंडितों का काम है। हाँ, जिस डॉक्टर से अपन दवा करते हैं उनसे तो पूछो कि कोविशील्ड ने कोविशील्ड शा માટે કહેવામાં આવે છે, शील्ड शब्द क्यों आया उस, व्हाट इज द मीन ऑफ शील्ड? वो है वो कवच, कवच है वो, समझाय छे? हाँ, કાલે રેડીમેડ રેડમીસિવિર ઇન્જેક્શન ની વાત આપણે કરી હતી। હા, विशेष चर्चित विषय रह्यो हतो गईकालना स्वाध्यायमां आपणो। हाँ, ओके। तो इस छंद में कहते हैं कि रत्नत्रय में अक्षय संपत्ति जिसके पास हो, बहुत सुंदर है छंद। रत्नत्रय में अक्षय संपत्ति जिसके पास हो, वह इतना सुखी होता है कि पुण्य और पाप के उदय में कहीं भी हर्ष और शोक के परिणाम उसे हो ही नहीं सकते। वो न संसार में सुखी होगा न संसार में दुखी होगा। क्या कहा? संयोगों से न वो सुखी अपने आप को मानेगा न वह दुखी अपने आप को मानेगा। ऐसी सुंदर तात्विक और सात्विक उसकी परिणति होती है। ये पांचवा छंद, बराबर। और छठे छंद में क्षमा भाव हो दोषों के प्रति, क्षोभ नहीं किंचित आवे। अरे गलती हुई है, दोषों के प्रति क्षमा भाव अंगीकार करो। समता भाव आराधन से निज चित्त नहीं डिगने पावे। समता भाव, सामायिक भाव, वीतराग भाव, किसी भी दशा में मेरी परिणति दुखी न हो, विकारी न बने, रहे। इससे इसमें परम सामायिक की व्याख्या इसमें, बराबर। इसमें ये जो अधिकार मैंने आपको कहा ना कि जो खास करके संस्कार, इसमें सामायिक की एक व्याख्या है, बहुत आनंद आया। सामायिक की उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की है, इतनी बढ़िया। और वो प्रसिद्ध छंद है जो हम लोग वहां गुरुकुल में जब पढ़ते थे। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, आर्द्र रौद्र परित्याग, तद्धि सामायिकम व्रतम। ये सामायिक की व्याख्या है। ये इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में है। ये बोलो, अपन लोग सामायिक पाठ पढ़ते हैं संस्कृत में, लेकिन कहाँ के है वो मूल, वो हमें पता नहीं है। ये मूल पद्मनंदी पंचविंशतिका में छंद है, वो इसी अधिकार में है, 8 नंबर का छंद है। और सड़म ग्रंथ में 404 नंबर का श्लोक है। समता सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति समता, संयमे शुभ भावना, संयम के प्रति भावना हो, आर्द्र रौद्र परित्याग, तद्धि सामायिकम व्रतम। वही सच्ची सामायिक है। इतनी सुंदर रचना इसके अंतर्गत यहाँ कवि ने, आचार्य ने किया, आचार्य पद्मनंदी आचार्य ने की है। बहुत सुंदर रचना है, बहुत, मतलब क्या मैं बताऊं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है।
क्योंकि मैं आज जो इसका रसपान मैंने किया है, मन इतना प्रफुल्ल था, इतना इतना प्रसन्न रहा, इतना प्रसन्न रहा, ऐसा लगा कि जैसे मानो पद्मनंदी आचार्य के साथ ही बतिया रहे हो, इतना आनंद आया। आचार्यों के मूल ग्रंथों को उनकी बारीकाई में जाकर के जब देखते हैं तो एक हर्ष अलग जाति का, वो अनुवाद में, वो भाषांतर में नहीं आता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मराठी का तो मैंने आपको बताया ही था, हा? जीवित सुनी जल बुद्ध बुद्ध स्तंभ। अब उस काव्य का गुजराती में, हिंदी में, अन्य भाषा में चाहे जितना बढ़िया अनुवाद हो, वो ओरिजिनल का टेस्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे गुजराती में समझो आप, संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी। अब चाहे जितना भी बड़ा विद्वान और बड़ा पंडित उसका हिंदी में अनुवाद करे, इंग्लिश में अनुवाद करे, तो क्या उसका आनंद आता है? ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। हाँ, समझ गए आपको? इसलिए थोड़ा सा आचार्यों के मूल हार्द के साथ हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 7वें छंद से हम आप लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। 7वां छंद है, बहुत सुंदर चर्चा है, और इसमें भी इतनी मार्मिक चर्चा यहाँ आचार्य ने की है कि जिसकी कोई समझे आपकी कल्पना हम आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सुंदर है। उसमें भी आचार्य ने निशंकी दादी भावना की विशेष भावना, हाँ, और इतना ही नहीं, देखो तत्व के साथ हम आप लोगों को अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि तत्वमय रसमय एक में ओतप्रोत हो जाना चाहिए। बस मेरे लिए ही, मैंने कहा भी था आप लोगों को, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए। ये तत्व का उपदेश मेरे लिए सुनाया गया। जगत सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, थोर महात्मे होऊनी गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांचे समान व्हावे, हाच सापडे बोध करा। તમે લોકો બધાએ પૂછશો કે આ કઈ ભાષામાં છે? મને નથી ખબર કઈ ભાષા છે। हाँ, ऐसा अद्भुत आत्म कल्याण का मार्ग है। देखिए 7वां छंद प्रारंभ करते हैं। ओ निशंक निरपेक्ष परिणति, आराधन में लगी रहे, क्लेशित हो नहीं पापोदय में, जिन भक्ति में पगी रहे, पुण्योदय में अटकन जावे, दिखे साध्य महंत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराप, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। क्या कह रहे हैं देखो, हे जिनेन्द्र भगवान, ओ निशंक, मैं निशंक होकर पुण्य के प्रति, पाप के प्रति, संयोगों के प्रति कोई शंका मेरे चित्त में न रहे।
देह को छूटना है तो छूटना है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। संयोग छूटने वाले हैं तो छूटने वाले हैं, कोई उन्हें रोक सकने वाला नहीं। देह का स्वस्थ बने रहना, देह का बिगड़ना, परमाणु 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 स्वतंत्र और स्वाधीन। हाँ? पर से कुछ संबंध नहीं है जिनवाणी का नारा, यह जिनवाणी का नारा। तो निशंक हो गए ना हम आप लोग। हाँ, कल परसों भी मैंने कहा था, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल से, हाँ, जिस भाव पूर्वक जो जैसा परिणमन होना है सो तो होना ही है। इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, जिनेंद्र कोई भी उसे परिवर्तित कर सकने वाले नहीं है। तो निशंक हो। देखो भाई, तत्व ज्ञान की फर्स्ट एलिजिबिलिटी कोई है, प्रथम पात्रता कोई है तो निशंक हो। निशंकता होगी तो ही तत्व परिणमन में आए। निशंक नहीं होंगे तो चित्त व्यग्र होगा, कान में शब्द तो पड़ेंगे लेकिन अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। बहुत शांत होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। ओ निशंक निरपेक्ष परिणति, ये शब्द बहुत जोरदार है। निरपेक्ष परिणति क्या मतलब है कि मेरी परिणति निरपेक्ष हो। वाह, निरपेक्ष से मतलब न मुझे संयोगों से कोई अपेक्षा, न मुझे दुनियादारी से कोई अपेक्षा। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? किसी से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष। कल मैंने एक वाक्य बोला था आप लोग सुबह के स्वाध्याय, सहानुभूति की अपेक्षा मत रखो, स्वानुभूति करो। हमें किसी की सहानुभूति की कोई अपेक्षा नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब दुखी है, सब भयभीत है, सब आतंकित है, सभी आतंकित है, सभी भयभीत है। तो कौन किसका हाल हवाल पूछे? हा? तो किससे अपेक्षा रखो आप? सब दुखी है, इसलिए भाई किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ओ निशंक निरपेक्ष परिणति। वाह, गजब की बात। अरे मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ने से मुझे ज्ञान होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से कभी ज्ञान होने वाला नहीं है। क्या कहा मैंने? इन नासिक में जो घटना घटी ना, कल या परसों जो घटी नासिक में जो घटी, हाँ, ऑक्सीजन तो सब है ना वहां, तो हॉस्पिटल में टैंक का टैंक भरा हुआ था ना ऑक्सीजन का। हाँ, लेकिन जाने वालों को कोई बचा पाया? सुमेर काका 24 गए ना, 24 जो आईसीयू में भर्ती है, टैंक में भी ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन का टैंक यदि लीकेज हो जाता है, हाँ, आप सोचो। और मेरे ख्याल से आज बंबई में ना, विरार में सुबह 3 बजे आईसीयू में आग लगी। गजब की बात है। आईसीयू का आईसीयू उड़ गया सुबह 3 बजे होगी। बोलो, दोपहर 2:30-3 बजे होता तो कुछ और बचने की उम्मीद। आप सोचो तो सही आप। हाँ, बहुत समझने जैसा है। हाँ, निरपेक्ष रहो, निरपेक्ष, किसी से कोई लेना देना नहीं है।
हॉस्पिटल में भर्ती हो गए मतलब बच गए, ऐसी अपेक्षा मत रखो। क्या कहा मैंने? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग बाबत, बहुत स्ट्रांग है ये बात। हाँ, प्लेन में बैठ गए मतलब बम्बई पहुंच ही जाएंगे घंटे में। सोचो तो सही आप। हाँ, आने कहेवाय परपोटा जेवू आपनु जीवन। हाँ, समझ में आ रही बातें? बहुत वैराग्य भावना को दृढ़ करने जैसा, निरपेक्ष, निरपेक्ष। हाँ, બંને બહેનો તમે બેઠા છો ને, બંને ભેગા, બંનેનું અસ્તિત્વ જુદું છે કે નહીં? બંનેનું દ્રવ્યત્વ જુદું છે કે નહીં? હા, બંનેનું અગુરુ લઘુત્વ જુદું છે કે નહીં? દરેકનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, સુખ દુઃખ બધા જુદા છે કે નહીં? એઓને એક સરખી ભૂખ લાગે? બિલકુલ નહીં। एक ने एक रोटली खावाती पेट भराय, एक ने बे रोटली खावाती पेट भराय। एवुना सुख दुख जुदा, कण कण स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। स्वतंत्र ने स्वाधीन, निरपेक्ष, ओ निशंक निरपेक्ष परिणति आराधन में लगी रहे, आराधना में मेरी परिणति लगी रहे, किसी से कोई अपेक्षा। बहुत बहुत मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, एक थोड़ा सा उदाहरण देने का मन कर रहा है। जब से मोबाइल का कल्चर बढ़ गया और फिर मोबाइल को हम आप लोग रास्ते चलते चलते अपने पर्स में रखे रखे पावर बैंक के थ्रू चार्ज करते, तो कई बार वो पावर बैंक भी बॉम्ब का रूप धारण किया है, पता है ना आप लोग? वीडियो तो देखे होंगे, पावर बैंक ही फट जाते हैं। सोचो आप। हाँ, मतलब कौन से संयोग के पास हम कौन सी अपेक्षा रखेंगे, आप बताइए। अच्छा, दूसरा, मैंने अभी जो रोग महामारी चल रही है, इसलिए एक मेरे मित्र ने, हमारे नंद किशोर जी महाराष्ट्र से, उन्होंने 2 वीडियो मुझे भेजे, कल या परसों ही मैंने देखे। ये जो मास्क होते हैं ना, मास्क बांधते हैं, वो लाइट ब्लू कलर की नहीं होती, लाइट ब्लू जो मोस्टली डॉक्टर लोग सब बांधते हैं। तो ऐसे मास्क के ऊपर उन्होंने उसमें बिल्कुल गर्म पानी किया और गर्म पानी के बर्तन के ऊपर वो मास्क रखे और नीचे से भाप, क्या बोलते हैं उसको, स्टीम दिया उसको। तो वो जो मास्क था बिल्कुल नया मास्क, पूरा बंडल में से निकला, उसमें हजारों ऐसे माइक्रो व्हाइट कलर के कीड़े उसमें से स्पष्ट दिखते हैं। तो उस मास्क के वीडियो में ये बोला है, कमेंट्री की उसने कि मास्क, अब क्या सही क्या गलत पता नहीं है, लेकिन उसने ऐसा बोला कि मास्क बांधने वाले अधिक से अधिक जीव इन बैक्टीरियाओं के कारण मरे हुए। ऐसा बोला। अब आप बताओ, एक तरफ तो दुनिया कहती है कि अब डबल मास्क बांधो, और वहां मास्क के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उसमें दिखते हैं अपने को, उस वीडियो में बाकायदा दिखते हैं, अपने को दिखते हैं, जूम करके उसमें वीडियो निकाला है, और घर में ही, कोई ज्यादा उसमें नहीं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आप? हाँ, किससे क्या अपेक्षा रखो आप, ये मैं कह रहा हूं। हम आप लोग किससे अपेक्षा रखें? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर्णे कही। निज आयु क्षय से जीवित रहे, यह बात जिन वर्णे कही। अंतिम सत्य तो यही है ना, आयुष्य जब तक है, एक समय पहले प्राण छूटने वाले नहीं है,
और एक समय के बाद प्राण रहने वाले नहीं। इसलिए सारी दुनिया से वृत्ति को हटाओ और निरपेक्ष 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 निरपेक्ष। समझ में आ रही कुछ? सांभळो छो? घबराता नहीं। हाँ, ये घबराने की बात नहीं है। बहुत आत्मविश्वास के साथ तत्व ज्ञान को पचाने का काल है। हाँ, आनंद के साथ। अच्छा, ये स्वाध्याय करना कौन सा ध्यान है? स्वाध्याय करना ये कौन सा ध्यान आता है? बताओ, हिंदी बोलो। आर्थ ध्यान है या रौद्र ध्यान है? अरे बोलो, स्वाध्याय करना कौन सा ध्यान है? आर्थ ध्यान है या रौद्र ध्यान? धर्म ध्यान है ना, धर्म ध्यान। हाँ, तो धर्म ध्यान के काल में अपना मन प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? और यदि मन प्रसन्न नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए हमें? स्वाध्याय करते समय भी हमारा आर्त ध्यान चल रहा है, जो तीव्र कषाय के कारण होता है। स्वाध्याय करते समय भी जीव का मन प्रसन्न न रहे और अन्य संकल्प विकल्पों में जाए, वो तो तीव्र कषाय के कारण आर्त ध्यान हो रहा है। समझाए छे? हाँ, देखो, को निशंक निरपेक्ष परिणति आराधन में लगी रहे, आराधना में लगी रहे। क्लेशित हो नहीं पापोदय में। वर्तमान परिस्थिति है, तीव्र पाप का उदय है, लेकिन क्लेशित न, दुखी न, खेदाऊ नहीं અને હરકાવું પણ નહીં। હરકાવું નહીં એટલે રૌદ્ર ધ્યાન નહીં, અને ખેદાવું નહીં એટલે આર્ત ધ્યાન નહીં। क्लेशित हो नहीं पापोदय में, जिन भक्ति में पगी रहे। बस जिन भक्ति भावनाओं में डूबी रहे। बस पढ़ो, स्वाध्याय करो, दो घंटे सुबह करो, 2-4 घंटे दोपहर करो, रात्रि में 2-4 घंटे करो। स्वाध्याय 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 धर्म ध्यान, स्वाध्याय धर्म ध्यान, आत्म भावना, भक्ति सुनो, भक्ति भावना करो, सामायिक करो। हाँ, माला 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 फेरो, बीज मंत्रों का पाठ करो, सामायिक समता भाव धारण करो, चित्त को व्यग्र नहीं होने दे। शांत 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 शांत। संकल्प विकल्प दायक निमित्तों से दूर बने रहो, ये है उपाय। पुण्योदय पुण्योदय में अटकन जावे। देखो, पाप के उदय में संक्लेश नहीं करना और पुण्योदय में अटकना नहीं, दोनों बातें हैं। पुण्योदय में अटकन जावे, दिखे साध्य महंत। जो महान हमारा साध्य है, वीतरागता, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। सुंदर, इतना अमृतमय है ये बोल। हाँ, दिखे साध्य महंत है, कितना सुंदर कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। एक और अंतरा लेते हैं, 7 हो गए, 8वां। देखो, समग्र परलक्षी वृत्तियों को हटाओ और अपने आत्म कल्याण में लगाओ, ये कह रहे। क्योंकि पर संबंधी जितने जो भी संकल्प विकल्प हैं, वे नियम से आत्म साधना में अंतराय रूप बनेंगे, वो दिक्कतें पैदा करेंगे। ऐसा मेरा हर समय पुरुषार्थ हो, अलौकिक पुरुषार्थ हो, दीनता न हो, निराशा न हो। आत्म शक्ति मेरी अनंत है, वह मेरी आत्म शक्ति उछलती रहे। ऐसी आध्यात्मिक चेतना का संचेतन करने की भावना यहाँ कवि ने भाई सुनिए।
परलक्षी वृत्ति ही आकर शिव साधन में विघ्न करे। अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ? परलक्षी वृत्ति ही आकर शिव साधन में विघ्न करे। ओ पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा सावधान हर समय रहे। देखो हर चप्पे चप्पे पर सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या कहा? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहीं हम आप लोग ठाप खा रहे हैं, कहीं हम आप लोग चूक कर रहे हैं, इसलिए दुखी है, इसलिए अज्ञान का पोषण होता है। सावधानी, विषयों से बचो, कषायों से बचो, संसार की भावना से बचो। संसार की भावना मतलब संकल्प विकल्पों से बचो। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। ओ पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा। देखो ये अलौकिक पुरुषार्थ। हाँ, धंधा व्यापार, धन पैसा, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, हाँ, ये सारे ये सब पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ। एक धर्म पुरुषार्थ, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ। हाँ? ओ पुरुषार्थ लौकिक ऐसा सावधान हर समय रहे। हर समय सावधान रहे। नहीं दीनता नहीं निराशा, दीनता नहीं निराशा नहीं। आत्म शक्ति अनंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। इतना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। अहो सहज जिन पंथ है। बहुत अद्भुत भावना इस जिन मार्ग के अंतर्गत आई है। मेरे सामने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ खुला हुआ है। उसमें एक श्लोक मुझे नजर आ रहा है, इतना सुंदर है। रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः तेषां मोक्ष पदम दूरम। जो रत्नत्रय के मार्ग में विचरण नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, विहार नहीं करते हैं, वे लोग, उन लोगों के लिए तेषां, उनके लिए मोक्ष पदम दूरम भवेत्, उनसे तो मोक्ष पद कोसों दूर रहता है। दीर्घ तरो भव, वो भव भव में रुलते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की शैली, नाना प्रकार की काव्य पद्धति से हम आप लोगों को आचार्यों ने, ऐसे श्रेष्ठतम आध्यात्मिक कवियों ने हमें समझाया है। इस अध्यात्म के आत्म कल्याण के मार्ग में हम आप लोग बने रहे। 8 काव्य हुए हैं, कल और 2 या 3 काव्य अपन करेंगे। बाकी और 8 काव्य जो है वो आगामी सप्ताह के 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार। इस प्रकार से लगभग हम आप लोग ये 5वां स्वाध्याय आज पूरा किया। कल 6ठा स्वाध्याय करेंगे और आगामी सप्ताह में 2 स्वाध्याय लेकर के 8 स्वाध्याय के अंतर्गत इन 15 काव्यों की चर्चा स्वरूप जिन मार्ग की जो आध्यात्मिक कविता है, बहुत सुंदर रचना है, बारंबार गुनगुनाने जैसा है, उसके ऊपर का स्वाध्याय का क्रम हम आप लोग यथा योग्य समय पे पूरा करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा